Bayesian method. That is the third method to find the estimator. इससे पहले हमने दो मेथड डिस्कस किए हैं, एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड मेथड डिस्कस किया है, एक हमने मोमेंट मेथड डिस्कस किया है. दैट इज द थर्ड मेथड. इस मेथड को यूज करके भी हम एस्टिमेटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं. Bayesian method is an attractive technique in statistics to handle the variety of problem in these days. This technique is quite different to the classical approach of finding the estimators. In classical approach में हम क्या करते हैं? A random sample of x1, x2 up to xn is drawn from the population having unknown parameter theta, where theta is a fixed quantity. और करते हम क्या है? On the basis of sample information, we estimate the unknown parameter theta. But in Bayesian statistics, the approach is entirely different. In Bayesian, the theta is considered as a random variable, and whose variability is accounted by the probability distribution, which is called by the prior distribution. Bayesian technique में theta जो है ये basically random quantity होती है, और जब रैंडम क्वांटिटी होती है तो डेफिनेटली इट मींस इट फॉलो सम सर्टेन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसमें जब हम इसको डिनोट करते हैं तो वी कॉल इट प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन. दिस इज ए सब्जेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंटर्स बिलीफ एंड इट इज फॉर्मुलेटेड बिफोर द डाटा. ए सैंपल इज टेकन बाय द पॉपुलेशन हैविंग ए पैरामीटर थीटा एंड द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन इज अपडेटेड with the sample information. जो हम इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है डाटा से, वो हम प्रायर में इनपुट करते हैं और उसको दोबारा एवेल्युएट करते हैं, और फिर प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन हमारा अपडेट हो जाता है जब हमें नई इंफॉर्मेशन मिलती है. और इस अपडेटेड प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन को हम पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं इन बेजियन फिलॉसफी में. कंटिन्यूएशन ऑफ द मेथड ऑफ Bayesian. There are basically three ingredients for the Bayesian learning. तीन बड़े इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट हैं, या आप कह सकते हैं कि तीन इसमें फेजेस हैं जो जब आप Bayesian टेक्निक यूज करते हैं तो उन तीन फेजेस को हम उनके मुताबिक मूव करके हम बेस एस्टिमेट फाइंड आउट करते हैं. वो तीन फेज कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला जो फेज है, जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, दैट इज द प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन. प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज वी विल डिस्कस हियर, दैट इज इफ capital theta represent the parametric space. We have already known this terminology. Then for each value of the prior distribution, describe our beliefs about the theta, that it represents the true value of the population. Second ingredient जो है इसमें, that is the sampling model. That is also very important. If omega represents the sample space which consists of all possible values of the x, which is our random variable, then for all theta belong to capital theta, which is the parametric space, and x belong to the sample space, that is the capital omega, the sampling model describes our belief that x be the outcome of the known theta. The third important ingredient in the Bayesian methodology, that is the posterior distribution. For each numerical value of theta belong to parametric space, the posterior distribution describes our belief that theta is the true value having some observed data set. बड़ी एक सिंपल सी डिफरेंस है क्लासिकल अप्रोच में और बेजियन में. क्लासिकल अप्रोच में हमारे पास सिर्फ एक सिंपल मॉडल होता है और उसको हम एवेल्युएट करते हैं. बेजियन में क्या होता है कि हमारे पास प्रायर इंफॉर्मेशन भी आ जाती है उस मॉडल के हवाले से. जब हमें प्रायर इंफॉर्मेशन उस मॉडल के हवाले से मिलती है तो डेफिनेटली हमारे रिजल्ट जो है वो अपडेट होते हैं, और जब रिजल्ट्स अपडेट होते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि हमारे जो एस्टिमेट हैं वो बेहतर रिजल्ट परफॉर्म करें. If we denote the prior distribution by pi of theta, that is the standard notation to represent the prior distribution, and the sampling distribution, that is represented by f of x given theta, that is again a standard notation when we have only one parameter. Then the posterior distribution, which is the conditional distribution of theta given by x, because our ultimate aim is to find the information about our parameter of interest.
तो जब हमने अपने पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट के हवाले से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी है तो डेफिनेटली वी हैव टू फाइंड द थीटा गिवन दैट द सैंपल इंफॉर्मेशन. सो दैट इज इक्वल टू posterior distribution pi of theta given x, and that is equal to pi of theta, that is the prior, into the conditional of the sampling model, that is f of x given theta, divided by the marginal distribution of m into x, where m of x is the marginal of x, and it is given at, that is the integral, that is f of x given theta into p of theta into d theta. जब हम इसको इसका डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस वन, तो ये हमें जो रिजल्ट देगा वो प्योरली इन टर्म ऑफ एक्स होगा, उस पर थीटा एलिमिनेट हो जाएगा. तो दैट इज वाई के जनरली जब हम बेजियन इन्फ्रेंस को यूज करते हैं तो हम पोस्टीरियर को जब अवेल्युएट करते हैं तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज करते हैं. प्रोपोर्शनलिटी का साइन यूज करने का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जनरली हम वो क्वांटिटीज जिनमें हमारा पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता उसको हम इग्नोर कर देते हैं, उसको हम अपने आगे फर्दर मैनिपुलेशंस में यूज नहीं करते. तो प्रोपोर्शनलिटी साइन बेसिकली इस पर्पज के लिए यूज किया जाता है कि हमने वो तमाम क्वांटिटीज जिसमें हमारा पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट की कोई चीज शामिल नहीं है तो उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं. तो द सेम इज हेयर व्हेन जब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा तो हमें जो रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती है वो दैट इज प्योरली इन टर्म ऑफ एक्स. सो जनरली वी इग्नोर दिस वन. तो हम पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशंस को फिर इस फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज पाई ऑफ थीटा गिवन एक्स, एंड दैट इज बेसिकली द साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसका मैंने अभी जिक्र किया आपसे. दैट इज पाई ऑफ थीटा, दैट इज द प्रायर इंफॉर्मेशन, एंड दैट इज एफ ऑफ एक्स गिवन थीटा विच इज आवर लाइकलीहुड डेटा, जिसको हम यूज करके अपनी प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन को अपग्रेड करते हैं और हमें जो रिजल्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें अपडेटेड फॉर्म में मिलती है, एंड दैट इज कॉल्ड बेसिकली द posterior distribution. In Bayes, posterior distribution is used to make the inferences about the parameter theta, and we know that it is a random quantity. जैसा कि आपको शुरू में भी बताया गया है कि जब बेजियन में हमारे पास जो पैरामीटर ऑफ इंटरेस्ट है वो रैंडम क्वांटिटी हो जाता है. एवरी स्टेप पे जब हमें नई इंफॉर्मेशन मिलती है तो थीटा जो है वो अपग्रेड हो जाता है. दूसरे फेज में हमें एक और नई इंफॉर्मेशन मिलती है, थीटा और अपग्रेड हो जाता है. तो इसमें हमारे पास ये फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है बेजियन इन्फ्रेंस में कि जो हमें इंफॉर्मेशन पैरामीटर के हवाले से मिलती जाती है, हमारा जो प्रायर डिस्ट्रीब्यूशन है वो अपडेट होता जाता है, और जो पोस्टीरियर डेंसिटी है हमारी पास या पोस्टीरियर इन्फ्रेंस जो हम ड्रा करते हैं वो भी अपग्रेड होता जाता है. हमारा जो एस्टिमेटर है वो ज्यादा मॉडिफाइड होता जाता है. तो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि ये रैंडम क्वांटिटी है और जनरली इसमें जो इसका मीन होता है बेसिकली वही हम एज ए बेस एस्टिमेटर के तौर पे यूज करते हैं. तो जो हमारे पास पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसका जो मीन होगा वो बेसिकली हम यूज करेंगे बेजियन इन्फ्रेंस में उसके पॉइंट एस्टिमेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए.